Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel English with Dihati ma'am, and this is Yashoda. Friends, being a learner, it's my responsibility to tell you about all the difficulties that I have faced, in learning this language, and what kind of difficulties, what kind of problems and issues still I have, and I am facing these problems. So being a learner, it's my responsibility to tell you all of that. And because you also want to learn this language, you are a learner and you also want to get fluency in this particular language, English language. So learning this language, it's not very difficult. Learning any language is not difficult. It's not too difficult to learn any language. You can learn in easy way. But friends, knowing the easiest way and knowing the particular way that is very effective way to learn any language, this is very hard to find that effective way to learn any language. दोस्तों, मेरा कहना ये है कि किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को लर्न करना, सीखना, ठीक है, उस भाषा को सीखना उतना कठिन नहीं होता जितना कि ये कठिन होता है कि इस भाषा को, किसी पर्टिकुलर भाषा को सीखने के लिए जो तरीका होता है ना, वो तरीका फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. और जब तक हमें वो पर्टिकुलर वे हमको नहीं मिल जाता, वो पर्टिकुलर ट्रिक हमको नहीं मिल जाता, तब तक हम बस अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करते रहते हैं, बस उनसे लड़ते रहते हैं, बट हमको कोई रिजल्ट्स हमको दिखते ही नहीं है. सो I just want to tell you that if you want to learn this language, so first of all, I would like to tell you that English is just a language, So stop treating this language, treating English like a subject. आप क्या करना चाहते हो? आप एक इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद कर दो. Like your math subject and your science, your social science, every kind of subject. It's just a language, friends, like your mother tongue, like your Hindi language, just like that. And friends, it's my opinion, it's my opinion that if I want to learn English, then first, what should I do? Then my opinion is, first I have to listen, First I should listen, and then I should start speaking, and then when I'm be able to speak something, not perfect, but if I'm able to speak something broken English, then I have to work on my grammar. Friends, how does a child learn? Everyone knows how does child learns. फर्स्ट वो क्या करता है? पहले लिसनिंग करता है, देन वो स्पीकिंग करता है, और देन आफ्टर दैट जब वो स्कूल जाता है, देन वो क्या करता है? फिर वो ग्रामर सीखता है, ABCD, देन आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स अबाउट दैट लैंग्वेज, जैसा कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में करते हैं. पहले हमने क्या किया? फर्स्ट हमने जब हम छोटे थे तो हमने ऑब्जर्व ही किया है. हमने बस अपने मम्मी पापा को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने चारों ओर, अराउंड, अपने चारों ओर बस हमने लिसन किया है लोगों को, लोग क्या बोलते हैं, हमने उसको ऑब्जर्व किया है, हमने कंज्यूम किया है. कितनी सारी चीज़ें हमने कंज्यूम करते गए, एंड आफ्टर 2 or 3 years देन वी स्टार्टेड स्पीकिंग. And we have to learn this language in the same way. We have to learn English language in the same way. And after speaking, when we went to the school, then we started learning this Hindi language. So, just think in your mind that English is just a language, and we have to treat this language as a language, not as a subject. सो फ्रेंड्स, मेरा तो बस यही मानना है कि इंग्लिश को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए. फर्स्ट आप लिसनिंग पे जितना ज़्यादा
आपको सराउंड कर सकते हो अपने आप को, जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो इंग्लिश का। ये मुझे पता है कि आपके चारों ओर घर में कोई नहीं है जो आपसे इंग्लिश बोल सके, देयर इज़ नो वन, बट यू हैव टू क्रिएट सराउंडिंग, ओके, योर इंग्लिश इन्वायरमेंट। हाउ? जस्ट स्टार्ट लिसनिंग, ओके, एज मच एज इंग्लिश कंटेंट, जितना हो सके बस इंग्लिश कंटेंट, ओके, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश कमेंट्री, okay, everything. Just try to listen everything in that language, okay, which language you want to learn, and after that start speaking, okay, just start speaking. If you are able to speak broken English, then you are good enough, at least you are trying, okay, that is the most important thing. There is a person who wants to just shut his mouth, and there is one who wants to speak, whatever comes in his mind. It's okay, he speaks broken English, he makes mistakes. I think this person is pretty good because he is speaking, and the other one who just want to be quiet, who just want to shut his mouth, I think he is useless. He is not going to be परफेक्ट इन हिज लैंग्वेज। यू नो फ्रेंड्स, पता है इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए, पता है फर्स्ट स्टेप वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप अपना ग्रामर से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको पहले ग्रामर से ही सिखाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आपको पहले छोटे छोटे फ्रेजेस से स्टार्ट करना चाहिए। वो सिंगल वर्ड्स, वो सिंगल फ्रेजेस, आपका डेली रूटीन, ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और बस स्पीकिंग पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे 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 आप थोड़ा लिसन करते जाते हैं, आपको पता लगता जाता है कि हाँ मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे बोलना चाहिए। वो आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाती है और आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट होते चले जाते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है कि listening, speaking, okay, and after that learning all the rules, all the structures, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बहुत से लोग ग्रामर के ऊपर जो लर्न करते हैं वो पता है ग्रामर में परफेक्ट होने में ही अपना टाइम पूरा दे देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप ग्रामर के बेस पे मत सीखो, ठीक है, आप सिचुएशन बेस पे कोई लैंग्वेज सीखो। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है, कोई भी सिचुएशन ले लो, कि हम सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं कि चाहिए। सभी को पता है कि चाहिए कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, कोई सजेशन देते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। हमको पता है कि चाहिए वर्ड जहाँ पे होता है हम वहाँ पे शुड यूज़ करते हैं, एंड अगर हम इसी शुड को हम पास्ट में बोलना चाहें तो हम इसको कैसे बोलते हैं। ओके, हमको पता है कि जब हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं, बट अगर हम इसी चाहिए को चाहिए था आ जाए कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो कैसे हम उसको बोलते हैं। शुड तो हमारा रह गई, बट हम यहाँ पे एक हमारी कंडीशन आ जाती है कि ये पास्ट का है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आ जाती है, शुड के साथ हम हैव लगा देते हैं और बाद में हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ओके, विद दिस कंडीशन, विद दिस स्ट्रक्चर, ओके, यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस दैट यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश लैंग्वेज, you should have gone to school, that's it। अगर हमें कहना हो कि कुड हम कैसे यूज़ करें, सभी को पता है कुड क्या होता है। कुड हम मोस्टली कैन के पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पास्ट में कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता था। ओके, जैसे कि वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक
English. He could speak English. He could run fast. वो सकता था. एक ये कंडीशन हो गई, ठीक. ये सिचुएशन हो गई कि ये पास्ट में यूज़ किया जाता है कुड. बट सेकंड इसकी जो सिचुएशन होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि हम कुड को किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कोई हमारे पास बैठा है, उसको हमें कहना है कि कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन. कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट. कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट. दैट्स इट. बस मैं दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी एक कंजक्शन ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, बस उसके बेस पर ना उसको पहले समझो कि वो कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है. और जब आपको पता लग जाता है ना कि ये पर्टिकुलर वर्ड, ये पर्टिकुलर सेंटेंस, ये पर्टिकुलर रूल हम कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें इसे पास्ट में यूज़ करना चाहिए, पास्ट के सेंटेंसेस में, या फिर प्रेजेंट के, या फिर फ्यूचर में, हमें इसे कौन सी कंडीशन में यूज़ करना चाहिए. ठीक है. हम किसी चीज़ में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे यूज़ करें. या किसी की क्वालिटीज़ को बताना चाहते हैं, वहाँ पे यूज़ करें. ठीक है. बस यही है इंग्लिश. इंग्लिश को मैं ये कहती हूँ, मेरा बस यही कहना है कि जो आप ये आपका ये पुराना रूल चला आया ना बहुत पहले से, कि आपको पहले पूरे टेंस आने चाहिए, देन आपको प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एवरीथिंग. ओनली देन यू कैन लर्न इंग्लिश, ओनली देन यू कैन स्पीक इंग्लिश. नो, इट्स अ फॉल्स नोशन. ओके, डोंट बिलीव इन दिस. यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज विदाउट लर्निंग एवरीथिंग. बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेस पे 2 और 3 चीज़ लेनी है. आप वोकैब ले सकते हो, या फिर आप कोई चीज़ ले सकते हो. आप सोचो कि आपको कौन से टॉपिक पे लर्न करना है. ठीक है. वो कंडीशन ले लो और उस कंडीशन को सर्च करो. आपको वीडियोस मिल जाएंगी. आप उसको 2-3 वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस कंडीशन पे मुझे ऐसे यूज़ करना है, ये वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं. ठीक है. भले ही वो मॉडल्स हो, भले ही वो कंजक्शन हो, भले ही वो नरेशन हो, भले ही वो कुछ भी हो, कॉस्टिव वर्ब हो, एवरीथिंग हो. आप जब उसको पूरा दिन उसको ट्राई करते हो ना, पूरा दिन इसको रिवाइज करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो. आपको पता लग जाता है कि हाँ, मुझे इस डेफिनेट सिचुएशन पे मुझे बस यही वर्ड यूज़ करना है, मुझे यही शब्द यूज़ करना है. दैट्स इट. I think friends, this video will going to be very helpful for you, and we will meet again in the next video. Till then, bye bye.